Good morning, student. Today we are going to start real number. Real number, as you know, one or two questions are compulsory from this exercise in 10th board. So let's discuss from exam point of view. Real number. What is real number? Whatever number we are studying, whether it is rational, irrational, decimal, non-decimal, fractional, integer, even number, odd number, all numbers are under real number. Means all numbers are subsets of real number. Sorry, means can't understand subset here now. Means we can say that real number के अंदर सभी नंबर आते हैं. मतलब if we divide real number, then real number is divided into broadly classified into two parts. First one is rational, second one is irrational. Next, rational number is further classified into decimal, sorry, only two, and non-decimal. Decimal number is further classified into so many parts that we know. Terminating, non-terminating. टर्मिनेटिंग किस प्रकार के होते हैं? सपोज एनी नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड. एग्जांपल में अगर हम ले लें यहाँ पे 4/2, दिस इज आल्सो रियल नंबर, रैशनल नंबर का पार्ट है ये. ठीक है, 4/2 ये टर्मिनेट हो जाएगा इजीली. दिस इज व्हाट नॉन टर्मिनेटिंग. More is there, non-terminating and repeating. ठीक है, here non-terminating, it will never terminate. Means suppose if you divide, if you want to find the value of 1/3, 1/3, or you can do 10/3. 10/3, it will not terminate. You can see here 3/10, 3 into 3, 9. So again 1 can, 0.0, again 3, again 9, 1, again 0. It will keep on going. So non-terminating and non-repeating, it can be classified here itself. Means broadly we can classify this one into two parts: terminating, non-terminating, and repeating. Okay. Now here non-decimal, which one I have taken here, this one. Non-decimal is your decimal part. Okay, here it will be not 4/10, 4/2. Here we can say 5/2.
say here 5/2. Okay. Non-decimals are under non-decimals. It comes a whole number, even number, odd numbers, natural numbers, integers, and then prime number, composite number. All numbers comes under. All the non-decimal numbers are here. Okay. So starting from your basic. Now I will move to your exam point of view. Generally here questions types are finding LCM and HCF of any two numbers. Using prime factor method. Before it was using Euclid's lemma division also, but this time it has been deleted from the syllabus. So how to find LCM and HCM of two numbers? Let's see. Let the numbers sublet question is there. Find LCM and HCF of LCM and HCF of, let us suppose like 12 and 40. 12 and 40. Okay. So what we have to do, we have to find the factor of 12. 12 का factor निकालना है हमें. Factor कैसे निकालेंगे? क्या करना है इसे? 12 को 2 से हम डिवाइड करते जाएंगे. 2 into 6, then 2 into 3, then 3 into 1. So this 2, 2, 3. This we have to write here. 2 into 2 into 3. Okay. So how many times 2 is there? 2 is here. 2 times 3 कितने बार है? एक बार. ऐसा लिखना है. नेक्स्ट 40 का फैक्टर निकालेंगे. इसी तरह से अगर 40 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 into 2, 4. 4 into 10. So therefore 4 into 2 into 2, 4. 4 into 2, 8. 8 into 5 is 40. Therefore we can write this is equal to 2 raised to 3 into 5 raised to 1. Okay. And here also see what are the factors of both prime factors 2, 3, 2, 5. So everywhere what I will do to make you understand properly, I will here 5 is not there. See, in 12th factor 5 is not there. So I can write into 5 raised to 0 here. Here also I can write 3 is not there. So I can write 3 into 0. 3 raised to 0. ठीक है. ये नहीं लिखे तो भी चलेगा. जस्ट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बता रहा हूँ. If you don't write this one, this part also, there is no problem. Okay. So let's see how to do. HCF जब निकालना हो, जब HCF निकालना हो, तो हम क्या देखेंगे? ये दोनों में 12 और 40 के फैक्टर्स में कॉमन कौन सा है? कॉमन कौन सा है? 2 है और 3 है. देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है. अब सॉरी 5 है. 2 कॉमन सिर्फ 2 है क्योंकि 3 12 में है तो 3 40 वाले में 3 नहीं है. तो टाइम बिंग लेट अस इरेज दिस वन. Okay. So in HCF we can see that 12 वाले के फैक्टर में 2 है और 3 है प्राइम फैक्टर्स में, और 40 वाले के प्राइम फैक्टर्स में 2 and 5 इज देयर. विच इज कॉमन इज 2. 2 का लोएस्ट पावर कौन सा वो देखना है. तो 2 का लोएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है. सो लोएस्ट पावर इज 2. तो 2 raised to 2 is your HCF. But when we have to find LCM, what we have to do? हमें
कॉमन कौन कौन से, जितने से दोनों में जितने फैक्टर आए सबको लिखना है। कौन कौन से फैक्टर आए, 2i, 3i और 5i, पहले लिखना है इनको, ठीक है। उसके बाद इनके पावर्स सबसे हाईएस्ट कौन कौन से हैं। 2 के पावर सबसे हाईएस्ट क्या है, 3, सो विल राइट हियर 3। और 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो 1 ही रखेंगे। 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो यही रखेंगे। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 2 to 3 इज 8, एंड 8 into 5 is 40, and 40 into 3 is 8 into 5 into 3 we have to do. So 8 into 5, 40, 40 into 3 is 120, 120. So LCM of 40 and 12 is 120. Okay. Hope you understood HCF कैसे फाइंड करते हैं और LCM कैसे फाइंड करते हैं। ओके, वंस अगेन, HCF जब निकालना हो तो हम क्या देखेंगे, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में कॉमन कौन सा है, कौन सा फैक्टर कॉमन है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2, ठीक है। अब वो कॉमन फैक्टर्स में से सबसे कम पावर वाला कौन सा है। यहाँ पे देखिए 2 raised to 2 है, यहाँ पे 2 raised to 3 है, तो कम कौन सा होगा, 2 raised to 2। सो HCF इज 2 raised to 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो आता है, इसका एक प्रॉपर्टी है डैट अगर कोई दो नंबर दिया हो A एंड B, let A and B be any two numbers. Let A and B are any two numbers. Any two numbers. Then product of their LCM and HCF are equal to the product of this number. Means you can write A into B is equal to LCM into HCF of AB. LCM and HCF of AB. ठीक है। Here itself we can see the example here. Is the example, see example. What was the number? Number was 12, A is 12 and B is 40. 12 into 40. 12 into 40. Okay. Into 40. Wait. Some technical issues happen. Okay. 12 into 40. A and B equal 12 into 40. And what is the LCM we got? We got 120 LCM. Now what is the HCF we got? HCF we got 2 raised to 2, that is 4. ठीक है, ये कितना है, इस 2 raised to 2, so this is equal to 4 only ना। Okay, now if you multiply this side you can see 112 into 40 equal to 480 equal to this are also 480. So what we can see, that both sides are equal, therefore we can say product of two numbers is equal to product of their LCM and HCF। okay, ये इस तरह का क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 4 मार्क्स के आते हैं, दैट इज समटाइम्स 4 मार्क्स, समटाइम्स 3 मार्क्स आल्सो। दैट इज प्रूव दैट following number is irrational। okay, questions like prove that √3 is irrational। prove that √3 is irrational। so what we will do here, हम पहले क्या करेंगे, इसे ये मान के चलेंगे कि ये √3 इरेशनल नहीं,
√3 रैशनल है, हम पहले इसको रैशनल मान के चला गया, ठीक है। फिर हाउ टू प्रूव दिस वन, लेट √3 इज रैशनल। इफ √3, अगर √3 रैशनल होता है तो हम रैशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, p/q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। मतलब चलो मैंने इसको मान लिया, लेट √3 इज a/b, √3 इक्वल टू b, वेयर a एंड b आर को प्राइम, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ए और बी को प्राइम है, को प्राइम का मतलब कि ए और बी सिर्फ और सिर्फ एक से ही डिवाइड हो सकते हैं यहाँ पे, मतलब कोई दूसरा नंबर नहीं जिससे ए बी दोनों डिवाइड हो जाए, दोनों ए और बी डिवाइड हो जाए कोई और नंबर से। एग्जाम्पल वी कैन से हियर 5/7, वी कैनॉट डिवाइड 5/7, ओनली वन इज द फैक्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 5 एंड 7, ठीक है। आल्सो वी कैन राइट 4/5 आल्सो, ठीक है। a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 5। You should not think that here co-prime is given. It means 4 should be prime and 5 should be, A should be prime and B should be prime. Co-prime means that any two numbers having only one as a common factor. Okay, any two numbers having one only as a common factor. इसका मतलब ये भी होता है कि ये दो नंबर और किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते एक्सेप्ट वन, वन के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। ओके, सो व्हाट वी हैव सीन हियर √3 इक्वल टू a/c हमने अज्यूम किया, तो क्या करेंगे, मैं दोनों साइड इसको, अब हम क्या प्रूफ कर, देखो अभी हमने क्या मान के चला कि ये दो ए और बी ऐसे नंबर है जो किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। इन द केस ऑफ रैशनल, अगर रैशनल है तो ए और बी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, ये मैंने बोला। लेकिन हम अपने बात को गलत साबित करेंगे कि ए और बी किसी से डिवाइड नहीं होता, हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि ए और बी किसी और से भी डिवाइड होता है, ठीक है। अगर किसी और से डिवाइड होता है तो फिर ये दो नंबर को प्राइम्स नहीं है, ये दो नंबर को प्राइम्स नहीं है, इसका मतलब √3 जो है रैशनल भी नहीं है, ओके। इस तरीके से हम इसे प्रूव करेंगे। सो √3 इज इक्वल टू ए बी, देयरफॉर व्हाट वी विल डू हियर, वी विल स्क्वायर बोथ साइड। देखो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, पहले इसको क्या √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, you can see if we will square the √3 what we will get, so right here squaring both side, squaring both side, what we will get, √3 का स्क्वायर इज 3 इक्वल टू a² / b²। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमें क्या मिल जाएगा, 3b² इक्वल टू a², 3b² इक्वल टू a², ओके। 3b² इक्वल टू a² का मतलब ये हो गया कि और ऑल्सो वी कैन राइट दिस वन एज b² इक्वल टू a²/3, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, b² इक्वल टू a²/3। इट मीन्स हियर a² is divisible by 3, you can say a² divisible by 3, ठीक है। a² को मैंने 3 से डिवाइड किया तो कितना है b², इट मीन्स a² is divisible by b², a² जो है b² से डिविजिबल है, ठीक है, ओके। तो अगर a² b² से डिविजिबल है देन a is also divisible by 3, a is also divisible by 3। अब बोलोगे ये कैसे हुआ सर,
ए स्क्वायर तो सॉरी ए स्क्वायर जो है थ्री से डिविजिबल, यहाँ पे थ्री होगा। ए स्क्वायर डिविजिबल बाई थ्री, तो ए भी थ्री से कैसे डिविजिबल होगा? यू कैन सी, लेट एनी नंबर नाइन, नाइन इज देयर, सपोज थ्री इज एनी नंबर, तो थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा? नाइन। नाइन इज डिविजिबल बाई थ्री, यस और नो? एंड थ्री इज आल्सो डिविजिबल बाई थ्री, यस, इक्वल टू वन। देयरफॉर वी कैन से दैट अगर कोई नंबर, कोई किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से अगर डिविजिबल होता है, तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे चार को हम दो से डिवाइड कर सकते हैं, तो दो को भी हम दो से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो का स्क्वायर क्या हुआ? चार। चार को डिवाइड हो जाएगा दो से, और दो भी दो से डिवाइड हो जाएगा। ओके ओके, सो अभी हमने यहाँ पे ए करके दिखाया कि ये जो है थ्री से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, ए थ्री से डिविजिबल हो गया, तो इसे कैसे लिखेंगे हम? ए बाई थ्री, ए को थ्री से डिवाइड किए, डिविजिबल है, कुछ तो आया होगा ना? क्या आएगा? सपोज अज्यूम के आ गया, ए को थ्री डिवाइड किए तो क्या है? जैसे नाइन को थ्री से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? थ्री आता है। वहां तो नाइन हमें मालूम है, यहाँ पे मुझे ए का वैल्यू क्या है मुझे नहीं मालूम, बट डिविजिबल है मुझे पता है। सपोज डिवाइड करने के बाद कितना है? क्यू, के के टाइम्स में कट गया। सो वी कैन राइट इट एज ए इक्वल टू थ्री के। ए इक्वल टू थ्री के आ गया। अब ये वैल्यू ए इक्वल टू थ्री की जो है, हम इस इक्वेशन में रख देंगे, इस वाले इक्वेशन में। यू कैन सी हियर, यू कैन कीप दिस वन इन दिस इक्वेशन। ओके, यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। So let me continue. Putting the value of a equal to 3 key here. Here I am going to put, means let us assume this equation as a वन, इसको वन मानते हैं, इसको हम ए मानते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? ए का वैल्यू वहां रखना है हमें, तो एलएचएस साइड में क्या है? थ्री बी स्क्वायर इज देयर इन द एलएचएस। थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा? थ्री के, तो देयरफॉर नाइन के स्क्वायर, नाइन के स्क्वायर। ठीक है, इससे कट गया। फिर बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? थ्री के स्क्वायर। ये नाइन जो है इस थ्री से कैंसिल हो गया। ओके, नाउ what we saw here, now this can also be written as b square by थ्री इक्वल टू के स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? ये जो बी स्क्वायर था उसको मैंने थ्री से डिवाइड कर दिया, तो के स्क्वायर टाइम्स में वो डिविजिबल हो गया। मतलब बी जो है वो थ्री से डिविजिबल है। देयरफॉर here can write b is also divisible by थ्री। अगर बी स्क्वायर थ्री से डिवाइड हो रहा है, तो बी भी थ्री से डिवाइड होगा। तो हम क्या देख रहे हैं? ए भी थ्री से डिवाइड हो रहा है और बी भी थ्री से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ए और बी दोनों थ्री से डिवाइड हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने इसे क्या माना था? ए बाई बी से को प्राइम, मतलब ए और बी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा वन के अलावा। लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं कि ए भी डिवाइड हो रहा है थ्री से और बी भी डिवाइड हो रहा है थ्री से। सो व्हाट वी शुड राइट हियर, सिंस ए एंड बी बोथ आर both are divisible by 3, hence it is not co-prime. Means it refers to a and b. It is means a and b are not co-prime. ये अगर co-prime नहीं, इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत है। therefore we write it contradicts our, it contradicts का मतलब होता है खिलाफ। हमने जो माना उसके खिलाफ, इट कंट्राडिक्ट्स आवर assumption।
Okay, therefore it is therefore it is irrational. हमारा अजम्पशन क्या था, रैशनल का, लेकिन उसके खिलाफ हो गया तो इसका मतलब ये इरेशनल है। ऐसे हम प्रूव करेंगे, ठीक है। ओके, और इस क्वेश्चंस अगर रूट 2 का आए और रूट 5 का आए, जनरली इन्हीं तीनों के आते हैं, रूट 3, रूट 4, रूट 5, सब में यही प्रोसीजर फॉलो होगा। जहां जहां हमने 3 लिखा है, जस्ट वहां पे यू राइट 2 और 5। हाँ, स्क्वायरिंग करते समय ध्यान देना है, बट यू कैन सी वेर एवर आई हैव नॉट डन द स्क्वायर, यू कैन सी हियर, यहाँ पे 3 लिखा हूँ तो यहाँ पे तुम्हें 2 लिखना है, बट यहाँ पे हियर यू कैन सी हियर यू हैव टू राइट 2 का स्क्वायर, यहाँ पे तुम्हें 4 लिखना है, ठीक है। जस्ट यू शुड रिप्लेस द नंबर, दैट्स ऑल। सो एक प्रैक्टिस करोगे तो बाकी के तीनों भी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पे बेस्ड होता है, वो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं लोग, प्रूव दैट 2 minus suppose I will write here, prove that 2 minus 3 root 5 is irrational। ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये कम मार्क्स के होते हैं, 2 या यस मैक्सिमम 2 मार्क्स के होंगे। ये इरेशनल 2 या 3 मार्क्स के भी आते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, 2 - 3/√5 इरेशनल बोल रहा है, इरेशनल। 2 - 3/5 is irrational, okay, is given। What we will do here, we can write 2 - 3 root 5, assume that this is rational, then I will write this one a by b form. Let's assume this is rational, let this is rational, we can write equal to a by b। now इस -3 √5 को हम उधर लेके जाएंगे, सॉरी अभी 2 को लेके जाते हैं। सो -3 √5 इक्वल टू दिस 2 आई विल ब्रिंग RHS साइड, 2 को हम RHS साइड के तरफ लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, a/b -2। ओके, देन हियर वी कैन सी 3 √5 इज इक्वल टू व्हाट, अभी माइनस यहाँ पे माइनस रहने देते हैं अभी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a -2b/b, ठीक है। Now I will leave √5 here itself, √5 इक्वल टू, अब -3 को हम यहाँ पे लेके आएंगे। सो a - 2b क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जस्ट वी आर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन में हो तो दूसरे साइड जाकर के डिवीजन में होता है, अगर डिवीजन में होता है तो दूसरे साइड जाकर के वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। सी √3 -3 is multiplied with √5, now it will go another side, then what will happen, it will be divided it, so it -3 यहाँ पे आ जाएगा, -3, एंड पहले से यहाँ पे b है बैठा हुआ है। ये कैसे हुआ, हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, केवल √-3 को यहाँ पे लाया, और यहाँ पे तो इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ है भी नहीं, यहाँ पे 1 है, सिर्फ बाई 1 इसको लिख सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हमें ये मालूम है पहले से कि √5 इज इरेशनल, सिंस √5 इज इरेशनल, देयरफॉर ये √5 ही हमारा इरेशनल है, तो a - 2b/-3b ये क्या होगा, ये भी इरेशनल होगा। तो देयरफॉर वी कैन राइट देयरफॉर a/b इज irrational
hence 2 minus 3 root 5 is also irrational. Okay. So basically इतने तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रियल नंबर से. Hope you have understood. Please like and share my videos. Thank you very much.